بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ یہ پارٹ 6 ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو ہر لحاظ سے آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس تیر پر ذرا سی بھی پریشانی کا اظہار نہ کیا جو کسی نے اسے قتل کرنے کے لیے چلایا تھا۔ اپنے رفیق سالاروں کو اپنے خیمے میں بٹھائے ہوئے وہ بتا رہا تھا کہ جاسوس اور شب خون مارنے والے دستے کس قدر نقصان کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، میں علی بن سفیان کو ایک ہدایت دے چکا ہوں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ فوراً ہی مجھے اس حملے کی خبر ملی اور عمل درآمد دھرا رہ گیا۔ تم سب فوری طور پر یوں کرو کہ اپنے سپاہیوں اور ان کے عہدیداروں میں سے ایسے افراد منتخب کرو جو دماغی اور جسمانی لحاظ سے مضبوط اور صحت مند ہو، باریک بین، دور اندیش، قوت فیصلہ رکھنے والے جانباز قسم کے آدمی چنو۔ میں نے علی کو ایسے آدمیوں کی جو صفات بتائی تھی وہ سب سن لو۔ ان میں اونٹ کی مانند زیادہ سے زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی قوت ہو، چیتے کی طرح جھپٹنا جانتے ہوں، عقاب کی طرح ان کی نظریں تیز ہوں، خرگوش اور ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہوں، مسلح دشمن سے ہتھیار کے بغیر بھی لڑ سکیں۔ ان میں شراب اور کسی دوسری نشاور چیز کی عادت نہ ہو، کسی لالچ میں نہ آئیں۔ عورت کتنی ہی حسین مل جائے اور زر و جواہرات کے انبار ان کے قدموں میں لگا دیے جائیں، وہ نظر اپنے فرض پر رکھیں۔ اپنے دوستوں اور ان کے کمانداروں کو خاص طور پر ذہن نشین کرا دیں کہ عیسائی بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے اور فوجوں میں بے اطمینانی پھیلانے کے لیے اور عسکریوں کو جذبے کے لحاظ سے بیکار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ عورت کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور میں مسلمان عورت کو اس مقاصد کے لیے دشمن کے علاقوں میں کبھی نہیں بھیجوں گا۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں، عصمت کو ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ علی بن سفیان نے چند ایک لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ عیسائی بھی نہیں، مگر میں عورت کا قائل نہیں ہوں۔ محافظ دستے کا کمانڈر خیمے میں آیا اور اطلاع دی کہ محافظ کچھ لڑکیوں اور آدمیوں کو ساتھ لائے ہیں۔ سلطان ایوبی باہر نکلا، اس کے تینوں سالار بھی ساتھ تھے۔ باہر 5 آدمی کھڑے تھے جن کے لمبے چوہے، دستاریں اور ڈیل ڈول بتا رہی تھی کہ تاجر ہیں اور سفر میں ہیں۔ ان کے ساتھ 7 لڑکیاں تھیں، 7 جوان تھیں اور ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت۔ ان محافظوں میں سے ایک نے جو سلطان پر تیر چلانے والے کی تلاش میں گئے تھے بتایا کہ انہوں نے تمام علاقہ چھان مارا، انہیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ دور پیچھے گئے تو یہ لوگ 3 اونٹوں کے ساتھ ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ کیا ان کی تلاشی لی ہے؟ ایک سالار نے پوچھا۔ لی ہے، محافظ نے جواب دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ تاجر ہیں، ان کا سارا سامان کھلوا کر دیکھا ہے، جامع تلاشی بھی لی ہے۔ ان کے پاس ان خنجروں کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اس نے 5 خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیے۔ ہم مراکش کے تاجر ہیں، ایک تاجر نے کہا، سکندریہ تک جائیں گے۔ 2 روز گزرے، ہمارا قیام یہاں سے 10 کوس پیچھے تھا۔ پرسوں شام یہ لڑکیاں ہمارے پاس آئیں، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سسلی کی رہنے والی ہے۔ انہیں عیسائی فوج کا ایک کماندار گھروں سے پکڑ کر ساتھ لایا تھا اور ایک بحری جہاز میں جاسوار کیا۔ ان کے ماں باپ غریب ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ بے شمار جہاز اور کشتیاں چل پڑیں۔ لڑکیوں والے جہاز میں چند اور کماندار قسم کے آدمی تھے اور ان کی فوج بھی تھی۔ وہ سب ان لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر عیش و عشرت کرتے رہے۔ اس ساحل کے قریب آئے تو جہازوں پر آگ کے گولے گرنے لگے۔ تمام لوگ جہازوں سے سمندر میں کودنے لگے۔ ان لڑکیوں کو انہوں نے ایک کشتی میں سوار بٹھا کر جہاز سے سمندر میں اتار دیا۔ یہ بتاتی ہے کہ انہیں کشتی چلانی نہیں آتی تھی۔ کشتی سمندر میں ڈولتی اور بھٹکتی رہی۔ پھر ایک روز خود ہی ساحل سے آ لگی۔ ہمارا قیام ساحل کے ساتھ تھا۔ یہ ہمارے پاس آ گئیں، بہت ہی بری حالت میں تھیں۔ ہم نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ انہیں ہم دھتکار تو نہیں سکتے تھے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا کیا کریں۔ پچھلے پڑاؤ سے یہاں تک انہیں ساتھ لائے ہیں۔ یہ سوار آ گئے اور ہمارے سامان کی تلاشی لینے لگے۔ ہم نے ان سے تلاشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر کا حکم ہے۔ ہم نے ان کی منت سماجت کی کہ ہمیں اپنے سلطان کے حضور لے چلیں۔ ہم عرض کریں گے کہ ان لڑکیوں کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ ہم سفر میں ہیں، انہیں کہاں کہاں لیے پھریں گے۔
लड़कियों से पूछा तो वो सिसली की जुबान बोल रही थी। वो डरी डरी सी लगती थी। इनमें से 2-3 इकट्ठी ही बोलने लगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताजरों से पूछा कि इनकी जुबान कौन समझता है। एक ने बताया कि सिर्फ मैं समझता हूँ। ये इल्तिजा कर रही हैं कि सुल्तान इन्हें अपनी पनाह में ले ले। कहती हैं कि हम ताजरों के काफिले के साथ नहीं जाएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में डाकू हमें उठाकर ले जाएं। उधर जंग भी हो रही है, हर तरफ ईसाइयों और मुसलमानों के सिपाही भागते दौड़ते फिर रहे हैं। हमें सिपाहियों से बहुत डर आता है। हमें जब घरों से उठाया गया था तो हम सब कुंवारी थी। इन फौजियों ने बहरी जहाज में हमें तवाइफें बनाए रखा है। एक लड़की ने कुछ कहा तो उसकी जुबान जानने वाले ताजर ने सुल्तान अय्यूबी से कहा, ये कहती है कि हमें मुसलमानों के बादशाह तक पहुंचा दो, हो सकता है कि इसके दिल में रहम आ जाए। एक और लड़की बोल पड़ी, उसकी आवाज रंधियाई हुई थी। ताजर ने कहा, ये कहती है कि हमें ईसाई सिपाहियों के हवाले ना किया जाए। मैं मुसलमान हो जाऊंगी बशर्ते कि कोई अच्छी हैसियत वाला मुसलमान मेरे साथ शादी कर ले। 2-3 लड़कियां पीछे खड़ी मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी। इनके चेहरों पर घबराहट थी, बात करते शर्माती या डरती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताजर से कहा, इन्हें कहो कि ये ईसाइयों के पास नहीं जाना चाहती। हम इन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये लड़की जो कह रही है कि मुसलमान हो जाएगी बशर्ते कि कोई मुसलमान इसके साथ शादी कर ले। इसे कहो कि मैं इसकी पेशकश कबूल नहीं कर सकता। ये खौफ और मजबूरी के आलम में इस्लाम कबूल करना चाहती है। इन्हें बताओ कि इन्हें मुझ पर इत्मीनान है तो मैं इन्हें इस्लाम की बेटियों की तरह पनाह में लेता हूँ। अपने दारुल हुकूमत में जाकर ये इंतजाम कर दूंगा कि इन्हें ईसाई राहबों या किसी पादरी के पास भिजवा दूँ। पादरी यरूशलेम में होंगे। दूसरी सूरत यह है कि जब ईसाई कैदियों को आजाद किया जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकी शादियां काबिल इत्मीनान और अच्छी हैसियत के कैदियों के साथ कर दूं। इन्हें यह भी बता दो कि किसी मुसलमान को इनसे मिलने की इजाजत नहीं होगी और ना इन्हें इजाजत होगी कि किसी मुसलमान से मिले। इनकी जरूरियात और इज्जत का ख्याल रखा जाएगा। ताजर ने लड़कियों को उनकी जुबानी में सुल्तान अय्यूबी की सारी बातें बताई तो उनके चेहरों पर रौनक आ गई। वो इन शराइत पर रजामंद हो गई। ताजर शुक्रिया अदा करके चले गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़कियों के लिए अलग खैमा लगाने और खैमे के बाहर हर वक्त एक संतरी मौजूद रहने का हुक्म दिया। वो खैमे की जगह बताने ही लगा था कि 6 सलीबी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाए गए। वो बहुत ही बुरी हालत में थे। उनके कपड़े भीगे हुए थे, कपड़ों पर खून भी था, रेत भी। उनके चेहरे लाशों की मानंद थे। उनके मुतालिक बताया गया कि 1.5-2 मील दूर साहल पर बेसुध पड़े थे। वो टूटी हुई कश्ती पर तैर रहे थे। एक दिन कश्ती पानी भर जाने से डूब गई। ये सब तैरकर साहल तक पहुंचे। कश्ती में 22 आदमी सवार हुए थे, सिर्फ ये 6 जिंदा बचे। इनसे चला नहीं जाता था। ये सलीबी लश्कर के सिपाही थे। वो सब धड़ाम से बैठ गए। उनमें से एक चेहरे मुहरे से लगता था कि मामूली सिपाही नहीं, वो करा रहा था। उसके कपड़ों पर खून का एक धब्बा भी ना था, मगर जख्मों से ज्यादा तकलीफ में मालूम होता था। उसने 7 लड़कियों को गौर से देखा और फिर कराहने लगा। यह सलाहुद्दीन अय्यूबी का हुक्म था कि हर एक कैदी उसे दिखाया जाए। क्योंकि कैदी अभी तक समंदर से बच कर निकल रहे थे, इसलिए हर एक कैदी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाया जाता था। उसने इन कैदियों को भी देखा, किसी से बात ना की, अलबत्ता इस कैदी की को जो सबसे ज्यादा करा रहा था और जिसके जिस्म पर कोई जख्म ना था, सुल्तान ने गौर से देखा और आहिस्ता से अपने सलारों से कहा, अली बिन सफियान अभी तक नहीं आया। इन तमाम कैदियों से जो अब तक हमारे पास आ चुके हैं बहुत कुछ पूछना है, इनसे मालूमात लेनी है। उसने इस कैदी की तरफ देखकर कहा, यह आदमी कमानदार मालूम होता है, इसे नजर में रखना और जब अली बिन सफियान आए तो उसे कहना कि इससे तफसीली पूछगिछ करे। मालूम होता है इसे अंदर की चोटी आई हैं, शायद पसलियां टूटी हुई हैं। इन्हें फौरन जख्मी कैदियों के खैमों में पहुंचा दो। इन्हें खिलाओ पिलाओ और उनकी मरहम पट्टी करो। कैदियों को उस तरफ ले जाएगा जिस तरफ जख्मी कैदियों के खैमे थे। लड़कियां इन्हें जाता देखती रहीं, फिर इन लड़कियों को भी ले गए। फौज के खेमों से थोड़ी दूर लड़कियों के लिए खेमा नस्ब किया जा रहा था। वहां से कोई 100 कदम दूर जख्मी कैदियों के खेमे थे। वहां भी एक खेमा गाड़ा जा रहा था और 6 नए जख्मी कैदी जमीन पर लेटे हुए थे। लड़कियां उनकी तरफ देख रही थी। दोनों खेमे खड़े हो गए। लड़कियां अपने खेमे में चली गईं और जख्मियों को उनके अपने खेमे में ले गए। एक संतरी लड़कियों के खेमे के बाहर खड़ा हो गया। लड़कियों के लिए खाना आ गया जो उन्होंने खा लिया। फिर एक लड़की खेमे से निकलकर उस खेमे की तरफ देखने लगी जिसमें नए 6 जख्मी कैदियों को ले गए थे। उसके चेहरे पर अब घबराहट और खौफ का कोई तासर नहीं था। संतरी ने उसे देखा और उसने संतरी को देखा। लड़की ने मुस्कुरा कर इशारा किया कि वो जख्मियों के खेमे की तरफ जाना चाहती है। संतरी ने सर हिलाकर उसे रोक दिया।
लड़कियों को खेमे से दूर जाने या किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। लड़कियों और 6 जख्मियों के खेमों के दरमियान बहुत से दरख्त थे। बाएं तरफ मिट्टी का एक टीला था जिस पर झाड़ियां थी। सूरज गुरूब हो गया, फिर रात तारीख होने लगी। कैंप के गोल गपाड़े पर नींद गालब आने लगी और फिर जख्मियों की कराहने की आवाजें रात के इस कुव्वत में कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई देने लगी। दूर परे बहराए रूम का शोर दबी दबी मुसलसल गूंज की तरह सुनाई दे रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस जंगी कैंप में जागने वालों में चंद एक संतरी थे, या वो जख्मी कैदी जिन्हें जख्म सोने नहीं देते थे, या सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे के अंदर दिन का समा था। वहां किसी को नींद नहीं आती थी। सुल्तान अय्यूबी के 3 सालार उसके पास बैठे थे और बाहर मुहाफिज दस्ता बेदार था। सुल्तान ने एक बार फिर कहा, अली बिन सफियान अभी तक नहीं आया। उसके लहजे में तशवीश थी। उसने कहा, इसका कासद भी नहीं आया। अगर कोई गड़बड़ होती तो इतला आ चुकी होती। एक सालार ने कहा, मालूम होता है वहां सब ठीक है। उम्मीद तो यही रखनी चाहिए। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लेकिन 50,000 के लश्कर ने बगावत कर दी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहां नफरी 1,500 सवार और 2,700 प्यादा है। इनके मुकाबले में सूडानी बेहतर और तजर्बाकार अस्करी है और तादाद में बहुत ज्यादा। नाजी और उसके साथी टोले के खात्मे के बाद बगावत मुमकिन नजर नहीं आती। एक और सलार ने कहा, क़यादत के बगैर सिपाही बगावत नहीं करेंगे, पेशबंदी जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, लेकिन अली आ जाए तो पता चलेगा कि पेशबंदी किस किस्म की जाए। सलीबियों को रोकने के लिए तो सुल्तान अय्यूबी खुद आया था, लेकिन दारुल हुकूमत में सूडानी फौज की बगावत का खतरा था। अली बिन सफियान को सुल्तान अय्यूबी ने वहीं छोड़ दिया था ताकि वो सूडानी लश्कर पर नजर रखे और बगावत को अपने खुसूसी फान से दबाने की कोशिश करे। इसे अब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर वहां के अहवालो कवायद बताने थे, मगर वो नहीं आया था, जिससे सुल्तान अय्यूबी बेचैन हुआ जा रहा था। वो जब अपने सलारों के साथ काहरा की सूरत हाल के मुतालिक बातें कर रहा था, इसका तमाम कैंप गहरी नींद सो चुका था, मगर वो 7 लड़कियां जाग रही थीं, जिन्हें सुल्तान अय्यूबी ने पनाह में ले लिया था। एक बार संतरी ने खेमे का पर्दा उठाकर देखा, अंदर दिया जल रहा था। पर्दा हटते ही लड़कियां खराटे लेने लगी। संतरी ने देखा वो पूरी 7 हैं और सो रही हैं, तो उसने पर्दा गिराया और खेमे के साथ लाकर बैठ गया। खेमे के पर्दे के साथ जो लड़की थी, उसने नीचे से पर्दा जरा ऊपर उठाया। पर्दा आहिस्ता से छोड़कर उसने साथ वाली के कान में कहा, बैठ गया है। साथ वाली ने अगली लड़की के कान में कहा, बैठ गया है। इस तरह कानों कान में ये इतला 7 लड़कियों तक पहुंच गई कि संतरी बैठ गया है। एक लड़की जो खेमे के दूसरे दरवाजे के साथ ही आहिस्ता से उठकर बैठी और बिस्तर से निकल गई। बिस्तर जमीन पर बिछे थे। उसने ऊपर लेने वाले कंबल इस तरह बिस्तर पर डाल दिए जैसे इनके नीचे लड़की लेटी हुई है। वो पांवों पर सिरकती खेमे के दरवाजे तक गई, पर्दा हटाया और बाहर निकल गई। बाकी 6 लड़कियों ने आहिस्ता आहिस्ता खराटे लेने शुरू कर दिए। संतरी को मालूम था कि यह समंदर से बचकर निकली हुई पनाहगजीन लड़कियां हैं, कोई खतरनाक कैदी तो नहीं। वो बैठकर ऊँघता रहा। लड़की दबे पांव ऐसे रुख पर टीले की तरफ चलती गई जिस रुख से उसके और संतरी के दरमियान खेमा हायल रहा। टीले के पास पहुंचकर उसने उस खेमे का रुख कर लिया जिसमें 6 नई कैदी रखे गए थे। रात तारीख थी, वहां कुछ दरख्त थे। संतरी अब उधर देखता भी तो इसे लड़की नजर न आती। लड़की बैठ गई और पांव पर सिरक कर आगे बढ़ने लगी। आगे रेत की ढेरियां सी थी। वो उनकी ओट में सिरकती हुई खेमे के करीब पहुंच गई, मगर वहां एक संतरी टहल रहा था। लड़की एक ढेरी के पास लेट गई। संतरी इसे स्याह साए की तरह नजर आ रहा था। वो अब 2 संतरियों के दरमियान थी, एक इसके अपने खेमे का और दूसरा जख्मियों के खेमे का। इसे डर यह था कि जख्मियों का संतरी इस तरफ आ गया तो वो पकड़ी जाएगी। बहुत देर इंतजार के बाद संतरी दूसरे जख्मियों की तरफ चला गया। लड़की हाथों और घुटनों के बल चलती खेमे तक पहुंच गई और पर्दा उठाकर अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था। 2-3 जख्मी आहिस्ता आहिस्ता करा रहे थे। शायद उनमें से किसी ने खेमे का पर्दा उठता देख लिया था। उसने नहीफ आवाज में पूछा, कौन है? लड़की ने मुंह से शी की लंबी आवाज निकाली और सरगोशी में पूछा, राबन कहाँ है? उसे जवाब मिला, उधर से तीसरा। लड़की ने तीसरे आदमी के पांव हिलाए तो आवाज आई, कौन है? लड़की ने जवाब दिया, मोबी। राबन उठ बैठा, हाथ लंबा करके लड़की को बाजू से पकड़ा और इसे अपने बिस्तर में घसीट लिया। उसे अपने पास लटाकर ऊपर कंबल डाल दिया और बोला, संतरी ना आ जाए, मेरे साथ लगी रहो। उसने लड़की को अपने साथ लगा लिया और कहा, मैं इस इत्तेफाक पर हैरान हो रहा हूं कि हमारी मुलाकात हो गई है। ये एक मोजज़ा है।
جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ ہم نے بہت بری شکست کھائی ہے، لیکن یہ سب دھوکہ تھا۔ یہ وہی زخمی قیدی تھا جو دوسروں سے لاگت لگا اور چہرے مہرے اور جسے سے معمولی سپاہی نہیں بلکہ اعلیٰ رتبے کا لگتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی معمولی سپاہی نہیں، اس پر نظر رکھنا، علی بن سفیان اس سے تفتیش اور تحقیقات کرے گا۔ آج کی ویڈیو کا یہ حصہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ تاریخ چلتی رہے گی۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔